Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your history teacher. So I'm teaching in California Public School. So from last 2 or 3 days, or I can say from last week, I'm delivering lectures on the second chapter of our class 12th uh, history. The name of the chapter is the establishment and development of Indian democracy from 1947. Okay, so in this chapter I have delivered near about 3 lectures, and this is my next lecture. In the last lectures, we have learned about the refugee problems as well as the problem of Junagadh annexation and the problem of Hyderabad. But the region of Kashmir problem has left. So today we will firstly learn about the region of Kashmir problem between two countries, Pakistan and India after 1947. After this, we will learn about the foundation of Indian democracy and their aspects and the general elections of 1952 and more over the preparation of the elections, etc. Right? So I hope you will listen this video very carefully, and this will be a meaningful for you, and please watch this video carefully. Okay, so I'm going to start from the region of Kashmir problem. So students, you already know that uh, yes, students, you already know that region of Kashmir problem, right? Kashmir is the biggest issue among the both countries, India and Pakistan, since 1947. Okay, so firstly, you already know that Kashmir is known as the head of India, right? This is just in the north side of the India, and the borders of Kashmir is Kashmir shares his borders with China, Afghanistan, Pakistan, right? So this is the Muslim majority state. Hindus are less in this state till today from 1947. We can say 90% Muslims are living in this state. So that's why most of the majority of Muslims um, are want to join the Pakistan if a referendum is be there. But the apart from this, one fact is about it, that and most of also the Muslims also want to make their own country, right? But Kashmir is acceded in India under the instrument of annexation, right? So from that time, from 1947, it is a part of Indian democracy or Indian Union, right? So in 1947, the Kashmir was ruled by Hindu Raja Hari Singh. So the ruler of the Kashmir was Raja Hari Singh. He was a Hindu person, but he is ruled over 90% Muslims who were living in Jammu and Kashmir. Apart from this, Raja Hari Singh signed agreement with the Pakistan standstill agreement, and same agreement also signed with the India. But after some time, Pakistan started to disturb Raja Hari Singh by sending troops. But on 22nd October 1947, पाकिस्तान स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन इन कश्मीर. तो पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर में अगर वो मिलिट्री भेजेगा तो इसकी वजह से जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा. आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1947 में जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने प्रिंसिपल स्टेट्स को 2 ऑप्शन दी थी, 2 अल्टरनेटिव्स दिए थे. फर्स्ट अल्टरनेटिव था जहाँ तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ वो उन्हें ज्वाइन कर ले,
और सेकंड अल्टरनेटिव था कि अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। तो राजा हरी सिंह ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। इस इंडिपेंडेंस का फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तान था उसने राजा हरी सिंह के कश्मीर के ऊपर 22 अक्टूबर को मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से 24 अक्टूबर को थाउजेंड्स ट्राइबल पठान्स स्वेप्ट इनटू कश्मीर। तो 24 अक्टूबर को क्या हुआ कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो पठान्स थे, जो पठान फौजी थे, सोल्जर्स थे, वो कश्मीर में दाखिल हो गए। इससे परेशान होकर ऑन अक्टूबर 25, 1947 B.P. Menon, he was a government servant. B.P. Menon, he was a government servant, went to Kashmir for granting Maharaja Hari Singh appeal for help. So इससे घबराह कर जब पाकिस्तान ने ट्रूप्स को कश्मीर में भेज दिया तो राजा हरी सिंह ने घबरा कर उसी दिन अपनी जो हेल्प के लिए अपील की इंडियन यूनियन को। तो उसी तरह फिर B.P. मैनन सिंह, जो B.P. मैनन सिंह एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, हु वाज द हेड ऑफ द न्यू स्टेट्स डिपार्टमेंट, उनके बहुत नज़दीक थे। इस तरह B.P. मैनन 25 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पहुंच गए राजा हरी सिंह की अपील को ग्रांट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, और 26 अक्टूबर 1947 जो दरबार था कश्मीर का वो जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि ये सब दरबार शिफ्ट क्यों किया गया, जिस B.P. मैनन का जो डिसीजन था कि दरबार को जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाए, इसकी एक वजह थी कि राजा हरी सिंह को वो प्रोटेक्शन देना चाहते थे कि राजा हरी सिंह को कोई नुकसान ना हो पाकिस्तान की ट्रूप्स के द्वारा, राइट। सो आफ्टर दैट ऑन 26 अक्टूबर को ही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन था वो लागू हुआ किस डेट को, 26 अक्टूबर 1947 को, राइट। और कहाँ हुआ था वो, दरबार और शिफ्ट टू जम्मू के दरबार में वो लागू हुआ। तो उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 फर्स्ट सिख बटालियन सेंट टू श्रीनगर। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन 26 अक्टूबर को लागू हो गया तो उसके बाद 27 अक्टूबर को जो फर्स्ट सिख बटालियन थी उसे श्रीनगर भेज दिया गया पाकिस्तान ट्रूप्स का सामना करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन थी, है ना, उससे हरी सिंह जो वो था वो घबरा गया। तो उसने आगे जाकर इंडियन गवर्नमेंट में एक्सीड कर लिया गया बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, राइट। सो उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन हुई तो लगातार कंटिन्यूसली वो जो वॉर थी इंडियन पाकिस्तान के बीच कश्मीर में वो चलती रही, ठीक है, टाइम टू टाइम के बाद। उसके बाद UNO ने दखलंदाजी देकर 5 जन 1949 को सीज फायर लागू कर दिया, जिसको दोनों कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि सीज फायर लागू होने से पहले पाकिस्तान ने गिलगिट एंड बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसकी वजह से आज भी गिलगिट और बाल्टिस्तान is a part of Pakistan, but other parts just remained under the Indian democracy. So this is the reason of Kashmir problem. I want to tell you that Kashmir is the head of India and known as head of India. So Muslim majority state है, 90% Muslims are living there और ruled by Hindu Raja Hari Singh in 1947। उसके बाद क्या हो गया, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने मिलिट्री कैंपेन भेजने शुरू कर दिए। इसका फर्स्ट जो ट्रूप थी ट्राइबल पठान से वो कश्मीर में दाखिल हो गए अक्टूबर 1947 को। उसके बाद महाराजा हरी सिंह ने अब 25 अक्टूबर को अपील की हेल्प के लिए इंडिया को,
और उसके बाद 26 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन वो साइन हुआ राजा हरि सिंह के द्वारा। और दरबार था जो 26 अक्टूबर को दरबार था वो जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया था विंटर पैलेस में। एंड 27 अक्टूबर 1947 को फर्स्ट सिख बटालियन भेजी गई। ठीक है, इस तरह से कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कर लिया गया। बट पाकिस्तान ने अभी तक भी गिलगित और बाल्टिस्तान जो ऑक्यूपाई की हैं वो उसके पास ही हैं, बट अदर्स पार जस्ट अंडर इंडिया। जो सीज फायर हुई थी वो 5 जन 1949 को हुई थी। सो दिस इज़ द रीजन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम एंड द solution of the Kashmir problem. Then next is foundation of Indian democracy, right? This is the second chapter's second part. Okay, so after independence we all are knowing that in 1947 India got independence and two parts and divided into two parts, India and Pakistan. So when he got independence in 1947 he was facing a number of प्रॉब्लम्स। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया। जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना था। ठीक है, सेकंड थी अडल्ट सफरेज, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर कंट्री। तो इंडिया कोई भी अपना रिलीजन नहीं घोषित नेशनल रिलीजन नहीं घोषित करना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने एक सेकुलर कंट्री की प्रोविज़न भी को सेकुलर कंट्री का जो आइडिया था उसे भी इस्टेब्लिश करना था। ठीक है, आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द इंडिया। दिस इज आल्सो मेन इशू फॉर इंडियन पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन was not good in the British Empire, so this was also reorganized and the problem of public administration also be solved by the Indian government after 1947. So a special committee, so various committees were formed for various purposes such as for education, agriculture, secular country, adult suffrage, democratic constitution. But one most important committee was formed for making a constitution. So Dr. B.R. Ambedkar was the head of this committee, right? So Dr. B.R. Ambedkar went to the different countries to know about their constitutions, right? So he wanted to choose some good things from the all constitution of the all world's countries, right? So after collecting the data of the other constitutions of other countries he prepared a one manuscript। ठीक है, उन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर की। देन ही शोड दिस मैन्यूस्क्रिप्ट टू दी पीपल। उन्होंने लोगों को दिखाई इस मैन्यूस्क्रिप्ट को कि इसमें कौन से और जो सुधार होने चाहिए, राइट। सो उनको दिखाई तो उनका व्यू ऑफ पॉइंट भी लिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सो व्यू ऑफ पॉइंट लिया, तो उसके बाद व्यू ऑफ पॉइंट लेने के बाद 2000 अमेंडमेंट्स वर डन। तो 2000 अमेंडमेंट्स की गई। तो उन जो मैन्यूस्क्रिप्ट से उसके बाद 2000 अमेंडमेंट्स की गई। उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को इसी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया एंड दिस इज़ नोन एज द रिपब्लिक डे इन इंडिया। So this is the basic things for the foundation of Indian democracy, right? Firstly, number of problems were facing, फिर उन्होंने बहुत सारी कमेटीज बनाई, बट उनमें एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राइट। उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की गई, ठीक है। बाद में उनको लोगों को दिखाया गया, उनका व्यू ऑफ पॉइंट लिया गया एंड 2000 अमेंडमेंट्स वर डन। ऑन 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया और इसी डे को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद
First general elections were held. So first general elections of 1952, ये इलेक्शंस 1952 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस कब हेल्ड हुए थे, तो आप बोल सकते हो कि 1952 में। सो ग्रेट सक्सेस फॉर इंडियन लीडर्स। सो एक ये ग्रेट सक्सेस थी इंडियन लीडर्स के लिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा था, राइट। तो इंडिया was going to be a democratic country, so that's why it is a great success for Indian leaders. So Nehru grant voting right to all adults. So नेहरू ने क्या, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वोटिंग राइट टू ऑल अडल्ट्स, तो वोटिंग राइट को एक्सेप्ट किया सभी अडल्ट्स के लिए। जितने भी अडल्ट होंगे वो सभी वोट कर सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लोकसभा इलेक्शंस स्टार्टेड फ्रॉम 25 अक्टूबर 1951 to 21 Feb 1952. So these was started in 1951 and ending at 1952. That's why it is known as the general elections of 1952. In these elections, Congress contested on the all seats 489, but the Congress won only 364 seats. So majority of seats just was in the favor of Congress. So the all Congress leaders presented Jawaharlal Nehru as the Prime Minister of India, right? So this is the first general elections of 1952. सो इन जनरल इलेक्शंस में 40 नेशनल पार्टीज थी, 53 रीजनल पार्टीज थी एंड 83 स्टेट असेंबली सीट्स। सो 14 नेशनल पार्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 53 रीजनल पार्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेशनल पार्टी सच एज कांग्रेस एंड CPI एक्सेट्रा। सो 53 रीजनल पार्टी सच एज श्रोमणी अकाली दल, राइट। सो the parties which are just working in the states, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह ही 83 स्टेट असेंबली सीट्स के ऊपर भी चुन लड़ी गई, इलेक्शन हुए। सो इन दीज इलेक्शन में क्या खासियत थी कि रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, ठीक है। सो 98 लोकसभा सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST and 669 assembly seats were reserved for SC and ST. So that's why these are reserved, because of the one reason that to be maintain equal rights of all people to and to give chance to the SC and ST people to be become more a part of Indian डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इनमें इन सभी को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया। After that, preparation of elections. If we are going to be held elections, then preparation must be done in well manner, with well manners, right? So for the preparation of elections, so the Indian Election Commission was formed on 25th Jan 1950. सो इस डेट को इंडियन इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया था, है ना। एंड दिस डेट 25th Jan is also known as National Voters Day, right? So first, Mr. Sen was the first CEC, Chief Election Commissioner of Independent India, ठीक है। वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सेन, द इंडियन इलेक्शन कमीशन के। तो उनकी अगुवाई में 25 लाख बैलेट बॉक्सेस वर prepared and 62 crore ballot papers also prepared for the voting system, okay। so उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई थी, बूथ बनाए थे, ठीक है, फॉर 1000 वोटर्स
ठीक है। 1000 वोटर्स के पीछे एक पोलिंग बूथ होता था, राइट। तो 1000 वोटर के पीछे एक पोलिंग बूथ बनाया गया था जहाँ पे लोगों ने वोट करने थे अपनी पसंदीदा पार्टी को। सो आफ्टर दैट 2,24,000 बूथ्स वर एस्टेब्लिश्ड। ओके, फिर 1000 वोटर के पीछे बूथ बनाने की कितनी संख्या होगी? 2,24,000 बूथ्स। एंड दिस ऑल मैन्ड बाय 10 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन सभी 2,24,000 बूथ्स वर मैन्ड बाय द 10 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इन्हें संभाला, ठीक है, इन बूथ्स को। तो इस तरह से प्रेपरेशन हुई इलेक्शन की, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन 1952 में हुए थे। सो रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, राइट। सो रिजल्ट क्या था? तो आपको पता ही है कि कांग्रेस ने बहुत सारी सीट्स जीती थी, तो कांग्रेस वॉन हुई थी, ठीक है। नियर अबाउट 75% लोकसभा सीट्स जीती और 68.5% स्टेट असेंबली सीट्स को जीता, ठीक है। सो मेजॉरिटी इन दी मोस्ट ऑफ स्टेट्स उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी बना ली थी। बट इन मद्रास, इन त्रावणकोर एंड कोचीन, उड़ीसा एंड पेप्सू, ठीक है, इन सभी स्टेट्स में उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी और बाकी स्टेट्स में उनको मेजॉरिटी मिल गई थी, राइट। सो कांग्रेस मेड अलायंस, ठीक है, जिनमें मेजॉरिटी नहीं मिली थी वहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस की और वहाँ पे गवर्नमेंट को फॉर्म किया। सो दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट नेशनल पार्टी, कांग्रेस, ओके। देन द सेकंड नेशनल पार्टी थी जो सबसे बड़ी जीत ली थी उन्होंने, वो सीपीआई थी। उन्हें 23 लोकसभा सीट्स को जीता, 147 असेंबली सीट्स को जीता और उनके हिस्से में 4.6% वोट्स आए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और भी पार्टी थी, जैसे जनसंघ, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, ठीक है। इन सभी पार्टीज ने 10 लोकसभा सीट्स को जीता और इनकी जो वोट परसेंट थी वो 6% थी, जबकि सीपीआई के पास सीट से ज़्यादा थी बट वोट परसेंटेज 4.6 थी। इतनी वोट परसेंटेज होने के बावजूद भी ये सिर्फ 10 लोकसभा सीट्स के ऊपर ही जीते। और इसके अलावा बहुत सारे रॉयल्स फैमिली ने इलेक्शन लड़े थे, लैंडलॉर्ड ने इलेक्शन लड़े थे, वो भी इन सीट्स के ऊपर जीते, राइट। सो इनका इम्पैक्ट क्या हुआ था? सो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़, ठीक है। सो इम्पैक्ट क्या होता जनरल इलेक्शंस का? इनका क्या प्रभाव पड़ा इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर? एक फर्स्ट जो मेन इम्पैक्ट था वो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़। जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है, सबका साथ सबका विकास, जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना, तो इसी तरह डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को उत्साहित किया गया, राइट। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ मीन सभी को एजुकेशन होनी चाहिए, सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इलेक्शन में और सभी को एक समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, राइट। और सभी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। देन ऑपोजिशन लीडर। सो इन ब्रिटिश एम्पायर तो ऑपोजिशन तो है ही नहीं थी, अगर थी तो वो नामात्र थी, वो उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो ऑपोजिशन लीडर्स भी आ गए, है ना, लोकसभा में। जो सेकंड पार्टी होती है वो ऑपोजिशन में बैठती है, जो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट्स जीती है वो ऑपोजिशन में जाती है, ठीक है। तो ऑपोजिशन का एक फ़ायदा होता है इंडियन डेमोक्रेटिका के, वो लोकसभा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती है और क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉलिसी, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनको क्रिटिसाइज़ करती है, उनकी जो खामियां होती हैं वो बाहर निकालती है और लोगों को बताते हैं कि इस पॉलिसी का ये नुकसान होगा, ठीक है।
इस तरह से लोकसभा डिबेट्स में भी अपोजिशन लीडर्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उनकी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसिज्म के अंडर लाया गया। सो जो सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिश एम्पायर में प्रेस डिड नॉट एंजॉय द फुल फ्रीडम, बट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेस एंजॉयड फुल फ्रीडम। तो प्रेस को पूरी फ्रीडम दी गई, वो किसी भी व्यू से इंडिया के किसी भी बैड एस्पेक्ट्स को, गुड एस्पेक्ट्स को वो लोगों के सामने ला सकते थे। इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जैसे कोई न्यू लॉ था, उसका क्या नुकसान है लोगों के लिए, उसको बता, लोगों को वो डिस्क्राइब करते थे। इस तरह से प्रेस को फुल एंजॉयमेंट, प्रेस एंजॉयड फुल फ्रीडम एट दैट टाइम। इसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, ट्रेड यूनियंस बनी, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं था। जैसे ब्रिटिश एम्पायर में ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती थी, ठीक है, अगर बनती है तो वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी गवर्नमेंट अगेंस्ट नहीं कर सकती थी। बट पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन ने भी इसी टाइम फुल एंजॉयमेंट ली, फुल फ्रीडम की, ठीक है, उन्हें फ्रीडम मिल गई, वो उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती थी वर्कर्स के साथ तो ट्रेड यूनियन आगे आ जाती थी, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी भी आगे आ जाती थी। सो दीज ऑल आर द गुड इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन यूनियन of the elections of 1952. So students, this is your second chapter, the second part, and today we learn about firstly region of Kashmir problem, then about the elections of 1952. And in the elections of, in the head, under the heading of election of 1952, we have learned about the elections result, election preparations, and the impact of the 1952 elections. I hope students you have learned a number of valuable things from this video, and I was thinking that this will be a meaningful for you, and if you are not understanding this video, please watch this video again and again. Thank you so much. In the next lecture I will prepare the next part of the same lesson. Okay, thank you so much.